اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہت اچھا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ، اور وہ اس سے ملاقات کرنے والا بھی ہے، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ ہم نے اس کو ساز و سامان دیا، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، ثم پھر ہوا وہ یوم القیامت قیامت والے دن من المحضرین گرفتار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا، حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا، ویوم اور اس دن ینادیہم پکارے گا ان کو، فیقول اور وہ کہے گا، ویوم اور اس دن ینادیہم پکاریں گے رب العالمین ان کو، فیقول اور فرمائیں گے، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، این کہاں ہیں، شرکائی الذین کنتم میرے وہ شرکا جن کو تم نے بنا رکھا تھا، الذین کنتم تزعمون جن کو تم یقین کر بیٹھے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہو گئے ہیں، جو تم نے اپنے وہم میں اپنے گمان میں بنا رکھے تھے۔ قالا کہیں گے، الذین وہ لوگ، حق کا سچ ثابت ہو گیا ہے، علیہم ان پر، القول قول، حق کا علیہم القول جن پہ بات حق ہو گئی ہے، جن پہ بات سچ ہو گئی ہے، جن پہ بات پڑ چکی ہے، وہ لوگ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ لوگ، الذین وہ ہیں جن کو اغوینا ہم نے بہکا دیا، ہم نے گمراہ کر دیا۔ ہم نے ان کو کیوں گمراہ کیا؟ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کر دیا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ اغوینا ہم نے گمراہ کر دیا ان کو، اغویناہم ہم نے ان کو گمراہ کیا، کما غوینا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ تبرعنا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، اعلان برات کر دیے ہم نے، لا تعلق ہو چکے ہم، الیک آپ کی طرف، تبرعنا الیک ان سے لا تعلق ہو کہ ہم آپ کی طرف آ گئے۔ ما کانوا ایانا یعبدون انہوں نے نہیں ہماری عبادت کی ہے، ما کانوا نہیں تھے وہ، ایانا ہماری، یعبدون عبادت کرتے تھے، ما کانوا ایانا یعبدون وہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقیل ادعوا اور کہا جائے گا ان سے، پکارو، شرکاءکم اپنے ان باطل شریکوں کو، فدعوہم وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا تو وہ جواب نہیں دیں گے، لہم ان کو، ورعوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، لو انہم کاش کہ وہ لوگ، کانوا یہتدون سیدھی راہ پہ ہوتے، لو انہم کانوا یہتدون کاش یہ ہدایت وہ دنیا میں پا کے جاتے، کاش وہ دنیا میں سمجھ لیتے، وہ ہدایت پا لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اور اس دن ان کو پکارے گا، اس دن ان کو پکارے گا وہ، فَيَقُولُ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اس دن رب العالمین ان کو پکاریں گے، فَيَقُولُ وہ فرمائیں گے، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ کیا جواب دیا ہے تم نے رسولوں کو، فَعَمِيَتْ گم ہو جائیں گی، علیہم ان پر، الانباء تمام خبریں انبیاء کی، مرسلین کی، یومئذ اس دن، فہم لا یتساءلون تو وہ کسی سے پوچھیں گے بھی نہیں، پوچھ سکیں گے بھی نہیں۔ فاما من تاب بہرحال وہ شخص جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فعسا تو یقین ہے، تو امید ہے، تو یقین ہے، ان یکون من المفلحین کہ وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اور آپ کا رب تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ اور مختار کرتا ہے، چنتا ہے، پسند فرماتا ہے، مَا يَشَاءُ جو چاہتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ان کے لیے کوئی اختیار نہیں، اختیارات سارے اللہ کے ہیں۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات، وتعالی اور بہت بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وربک اور آپ کا رب،
यालमो खूब जानता है, मा तुकिन्नु सुदूरहुम जो छुपाते हैं उनके दिल, माँ जो तुकिन्नु छुपाते हैं सुदूरहुम उनके दिल, वमा युलिनून और जो वो जाहिर करते हैं, वहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु और वही अल्लाह है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही है माबूद। लहुल हम्दु उसी की तारीफ़ें हैं, फिल ऊला दुनिया में, वल आखिरते और आखिरत में, वलहुल हुक्म और उसी के लिए हुक्म है, व इलैहि तुरजऊन और उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। कुल फरमा दीजिए अराइतुम क्या तुमने देखा है, क्या तुमने सोचा है इस बात पर, इन जअलल्लाहु अलैकुम अगर बना दे अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर, अल-लैला रात को, सरमदन हमेशा, इला यौमिल क़ियामत क़यामत वाले दिन तक। कुल मेरे हबीब फरमा दीजिए अराइतुम सोचो इस बात को, इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा अगर क़यामत के दिन तक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रात कर दे तो, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़ियाइन कौन है वो माबूद अल्लाह के मां सिवा जो तुम्हारे पास रोशनी लेके आए। अल्लाहु अकबर। मन इलाहुन कौन माबूद है, गैरुल्लाह अल्लाह के मां सिवा, यातीकुम जो ले आए तुम्हारे पास, बिज़ियाइन रोशनी, अफला तस्मऊन क्या तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, गौर व फिक्र नहीं करते हो। कुल फरमा दीजिए अराइतुम क्या तुमने देखा है, अराइतुम क्या तुमने सोचा है, कुल अराइतुम सोचो तो सही, देखो तो सही, गौर व फिक्र तो करो। इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन अगर अल्लाह ताला बना दे तुम्हारे ऊपर दिन को हमेशा, इला यौमिल क़ियामत क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाह कौन माबूद है अल्लाह के अलावा, यातीकुम बिलैलिन जो ले आए तुम्हारे पास रात, तस्कुनून फीही जिसमें तुम सुकून करते हो, अफला तुबसिरून क्या तुम देखते नहीं हो, गौर व फिक्र नहीं करते हो, सोचते नहीं हो। वमिर रहमतिही और उसकी रहमत में से रहमत है, जअल लकुम बनाया उसने तुम्हारे लिए, अल-लैला रात को, वन-नहारा दिन को, लितस्कुनू फीही ताकि तुम उसके अंदर सुकून इख्तियार करो, वलितब्तगू मिन फज़लिही ताकि तुम तलाश करो उसका फ़ज़ल, वलअल्लकुम तशकुरून ताकि सुकून व फ़ज़ल के बाद तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। व यौम युनादीहिम और उस दिन वो पुकारेगा तुमको, फ़यक़ूलु और वो फरमाएगा, ऐन शुरकाई अल्लज़ीन कुन्तुम तज़उमून कहाँ हैं मेरे वो शरीक झूठे जो तुमने घर रखे थे, जिनका तुम वहम गुमान किया करते थे, कहाँ हैं वो, ले आओ हमारे पास। वनज़ाना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन और हम निकालेंगे उस दिन हर एक उम्मत से शहीदन एक गवाह, फ़कुलना हम कहेंगे हातू बुरहानकुम लाओ तुम अपनी दलील, फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाह तो यकीन जान लेंगे उस दिन वो कि हक सारा अल्लाह के लिए, वज़ल्ला अन्हुम और गुम हो जाएंगे उनसे, मा कानू यफ्तरून तमाम ग्रंथु खुदा जो घर रखे हैं झूठे माबूद, मा कानू यफ्तरून जो वो घरते थे, खुद तराशते थे, चाहे वो बुत थे, चाहे वो किसी भी सूरत के अंदर थे, चाहे वो जितने भी थे, किसी भी सूरत में अल्लाह के बराबर किए हुए थे, वो सारे उनसे उस दिन गुम हो जाएंगे, नाम सिर्फ अल्लाह का रहेगा, वहदहू ला शरीक ज़ात। सूरत कसस का 7वां रुकू हमने पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का जलाल है इस रुकू में। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 6 हालात बयान हुए, उन 6 हालात को हबीब खुदा के साथ जोड़ा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा गया। फिर उस रुकू के अंदर एक छोटा सा तकाबल किया और उस तकाबल के बाद अल्लाह की तौहीद का जलाल आया। तकाबल ये किया, क्या बराबर हो सकते हैं वो 2 लोग, एक के साथ हमने वादा किया है कि आखिरत है, हमारी मुलाकात है, जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस है, नबी का पड़ोस है, नबी की रफ़ाक़तें हैं, हमारी रज़ाएँ हैं, हमारी खुशनुदी है, हमारे साथ ताल्लुकात हैं। एक वो बंदा है और दूसरा एक वो बंदा है कि जिसको हमने दुनिया ही दुनिया दे दी है, आखिरत में उसका कुछ भी नहीं। क्या ये 2 लोग आपस में बराबर हो सकते हैं?
कभी भी नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। फिर क़यामत का जिक्र किया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी अदालत में ये एक आवाज़ लगाएंगे, लोगों ने मेरे मुकाबले में, मेरी शराकत में माबूद झूठे घर रखे थे, आज वो माबूद कहाँ हैं? माबूदों को हाज़िर कर दिया जाए। जब माबूदों को हाज़िर कर दिया जाएगा और बात उनके ऊपर पड़ जाएगी कि तुम्हारी इबादत लोग करते रहे हैं, लोगों ने तुम्हें पुकारा भी है, लोगों ने तुम्हारे लिए निदाएं भी की हैं, तो वो झूठे माबूद जिन्होंने ख़ुद लोगों को अपनी दावत की अपनी तरफ बुलाया है, जिन्होंने ख़ुद लोगों को कहा है कि तुम हमारी पूजा करो, उसकी एक मिसाल जैसे फ़िरऔन अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला, वो झूठे माबूदान वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा है कि हमने इनको गुमराह किया, इसलिए गुमराह किया कि हम खुद गुमराह थे, हमें तो खुद पता नहीं था। कुरान मजीद के बाकी मकामात पे अंदाज़ ये है कि आबिद कहेंगे माबूदों के बारे में, मुशरिकीन कहेंगे घरंतू माबूदान बातला के बारे में कि या इलाहल आलमीन, इन्होंने हमको गुमराह किया है, इन्होंने हमें ये किया है, इन्होंने हमें ये किया है। और वो ये भी कहेंगे कि हमने तो इनकी इबादत की ही नहीं। अब इस मकाम के ऊपर वो जो अपनी तरफ से मज़ऊमा खुदा बनाए हुए थे, और वह मज़ऊमा खुदा जिन्होंने ख़ुद अपनी इबादत की तरफ लोगों को मुतवज्जे भी किया, उनकी बात हो रही है, नेक लोगों की बात नहीं हो रही है। नेक लोग तो साफ ऐलान करेंगे हमें इनकी कार्रवाई का कोई पता नहीं, अम्बिया तक, औलिया तक, शुहदा सुलहा तक सब कहेंगे इलाह आलमीन हमें कोई पता नहीं है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पूछा जाएगा, आपने कहा था इनको हमारी इबादत करो, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या अल्लाह अगर मैंने कहा होता तो आपको तो पता होता, मैंने तो नहीं कहा इनको। तो उनके नहीं, ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने अपनी तरफ लगाया है लोगों को। वो कहेंगे अगवैना हम कमा गवैना, हम खुद गुमराह थे, इनको भी गुमराह किया, उनको भी गुमराह कर दिया। और फिर वो उस वक़्त कहेंगे इलाहुल आलमीन, हम इनसे ला ताल्लुक़ हो के आपकी तरफ आते हैं, मा कानू इय्याना याबुदून, इन्होंने हमारी इबादत नहीं की है, ये खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्सी की इबादत करते रहे। इनकार कर देंगे। माबूदान झूठे इबादत गुजारों से, मुशरिकीन और काफरों से कहा जाएगा, बुलाओ अपने उन खुदाओं को जिनको तुम दुनिया में पुकारा करते थे। ऐसे मकाम पे शुरका का माना खुदा ही होता है, बुलाओ उनको। वो पुकारेंगे भी, फ़लम यस्तजीबु लहुम, उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। वराबुल अज़ाब, अज़ाब को सामने देखेंगे। लौ अन्नहुम कानू यहतदून, ओहो काश के ये दुनिया में हिदायत पाते, हिदायत पा के आते हो। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और मुनादी भी फरमाएंगे, व यौम युनादीहिम फ़यक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास हमारे रसूल आए थे, हमारे रसूलों के साथ आपका क्या मामला रहा है? हमारे नबियों को तुम क्या जवाब देते रहे हो? हमारे कासद आते रहे हमारे पास, तुम्हारे पास, उन्हें तुमने क्या जवाब दिया है? फ़ामियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन फ़हुम ला यतसालून। उन सब को इससे ये बात ही गायब हो जाएगी कि कोई नबी भी आया है। एक दूसरे से पूछ भी नहीं सकेंगे, नकल भी नहीं कर सकेंगे। इम्तिहान ऐसा होगा कि नकल भी नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें बंदा नकल नहीं कर सकता है। हमारा एक एग्ज़ाम था ओपन बुक मेथड, किताबें खोलने की इजाज़त है जी, किताबें देख सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो। हमने कहा ये तो गप है, फिर इम्तिहान तो ना हुआ। तो जब सवाल आया सामने तो फिर बात समझ आई कि अब यहाँ तो अपना ही जो कुछ आता है वो करना पड़ेगा, किसी से पूछने का फ़ायदा ही कुछ नहीं, कोई किताब देखने का फ़ायदा ही नहीं। ऐसे भी इम्तिहानात होते हैं जी। अल्लाह अकबर। वक्त हमारे पास कम है, तो फ़हुम ला यतसालून, वो बहम एक दूसरे से कोई नकल भी नहीं कर सकेंगे, सवाल भी नहीं पूछ सकेंगे कि जवाब क्या दें। ख़बरें गायब हो जाएंगी उनसे। क्यों? दुनिया में अल्लाह वालों से ताल्लुक़ नहीं रखा है जी। उनसे मिलने की एक ही राह है,
ان سے ملنے کی ایک ہی راہ ہے، ان سے ملنے والوں سے راہیں رکھو۔ اللہ اکبر۔ فامیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، سب کچھ دماغ سے اڑ جائے گا، کوئی پتہ ہی نہیں کہ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، ہم کس نبی کی امت ہیں، کون سا نبی کیا دعوت دے کے گیا ہے، پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں وہ شخص جس نے کفر اور شرک سے، فسق و فجور سے توبہ کر دی، ایمان لے آیا، نیک اعمال کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، وہ کامیاب ہوگا۔ غور کرنے اگلی آیات پہ غور کریں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے پسند فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، جہاں اللہ کی پسند ہے، اللہ کی پسند میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، سبحان اللہ، اللہ تمام کمزوریوں سے پاک، وتعالی تمام بلندیوں کا مالک، عما یشرکون بہت بلند ہے اللہ رب العزت اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اپنے فہم کے مطابق شرک کیا، اللہ بہت بلند ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو دل چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے راز، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، یہ اللہ کی توحید کا جلال ہے۔ دیکھیں آگے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے اکیلا معبود، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی اللہ ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی تعریفیں اسی اللہ کی ہیں، آخرت میں بھی تعریفیں اسی اللہ کی ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم بھی اسی اللہ کا چلتا ہے، فی الاولی والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس تم لوٹ کر جاؤ گے۔ غور کریں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ کی توحید کی دلیل ہے، پیغمبر کی زبان سے اظہار ہو رہا ہے، پیغمبر کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو نا۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر ہمیشہ رات ہی کر دے، قیامت تک دن نہ آئے، رات ہی رات ہو جائے، کوئی ہے اللہ کے ماں سوا جو رات کو روشنی میں تبدیل کر کے روشنی لے آئے، دن کو لے آئے؟ سنتے نہیں ہو، دن و رات کا جو مالک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ قل ارائیتم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ارائیتم، دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، غور و فکر تو کرو نا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، لوگوں غور و فکر تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ دن کر دے، سرمدن ہمیشہ، سرمد کا معنی ہمیشہ، دن کر دے، دن ہی دن ہو، رات نہ آئے، قیامت کے دن تک صرف دن ہی دن ہو، کون الہ ہے؟ کوئی معبود اللہ کے ماں سوا جو تمہارے لیے رات کو لے آئے، تسکنون فی، جس میں تم سکون کرتے ہو۔ دن بھی ضروری ہے اور رات بھی ضروری ہے، انسانی صحت کے لیے چاند کی چاندنی بھی ضروری ہے، سورج کی تپش بھی ضروری ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اگر ہمیشہ دن ہی دن ہو تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیشہ رات ہی رات ہو تو پھر کیا کرو گے؟ غور و فکر نہیں کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ اگلی آیت آئی، اس پہ ذرا غور کرنا ہے، اس پہ بہت لازمی ہے غور و فکر کرنا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اللہ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے، اللہ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے، جعل لکم اللیل، جعل بنائے، لکم تمہارے لیے،
अल्लैला रात को, वन्नहारा दिन को, लितस्कुनु फीही कि तुम उसमें सुकून करो, वलितब्तगू मिन फज़लिही और तुम उसका फजल तलाश करो। देखना, जाला लकुमुल लैल इसके साथ ताल्लुक़ है लितस्कुनु फीही। रात अल्लाह ने बनाई है सुकून के लिए, अल्लाह ने रात बनाई है ताकि तुम रात में सुकून करो। जी, अल्लाह ने रात बनाई है कि रात के अंदर तुम सुकून करो, नींद करो। तस्कुनु फी का ताल्लुक लैला के साथ है। आगे वाले तब तगू मिन फजलिही और तुम तलाश करो उसका फजल, इसका ताल्लुक नहार के साथ, दिन में। अब सुकून दिन में भी हो सकता है और फजल रात में भी हो सकता है भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुदरत बनाई है, जो फितरत बनाई है, जो नेचर बनाई है, वो यही है कि रात में अल्लाह ने सुकून रखा है, दिन में अल्लाह ने फजल रखा है। रात का सुकून क्या है? नींद। नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सुबह नमाज के बाद न सोया करो, इससे इंसान फ़कीर हो जाता है, मोहताज हो जाता है, गरीब हो जाता है। नमाज के बाद न सोया करें, वक्फ़ा दिया करें। नहीं पड़ जाए तो इशराक तक का वक्फ़ा दे के सोया करें। रातें छोटी हैं, सुबह के वक़्त नहीं सोना चाहिए, बंदा फ़कीर हो जाता है। असर के बाद न सोया करें, बंदा पागल हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। असर के बाद नहीं सोना चाहिए, मगरिब के बाद भी नहीं सोना चाहिए। आसेब, जादू, जन्नात का असर इंसान पे होता है। ये बड़े उलमा के तजर्बे हैं, किसी हदीस से साबित नहीं है। ये बड़े उलमा के तजर्बे हैं जो वो सीना बसीना मुंतकिल होते रहे हैं। अच्छा, रात को इशा की नमाज के फ़ौरन बाद सोना चाहिए, अपने कामों को फ़ौरन निपटा के सोना चाहिए। फजर के वक़्त फ़ौरन बेदार होना चाहिए। इसमें सेहत भी है, सुकून भी, अल्लाह की रज़ा भी। अब अल्लाह का फजल जो तकसीम होना शुरू होता है वो तो सुबह के वक़्त से शुरू हो जाता है। और आजकल तो हमारे दोस्त कहते हैं जी हम जुम्मे वाले दिन कोई कारोबार नहीं करते, हालांकि जुम्मे की नमाज के बाद अल्लाह ने कारोबार में बरकत का वक्त रखा हुआ है, उस वक़्त में इन्होंने छुट्टी की हुई है। अच्छा, असल बात पे आते हैं। सुकून करते हैं हम, लितस्कुनु फीही, उसमें सुकून हासिल करो। वलितब्तगू मिन फज़ली, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद कस्ब माश है, तिजारत है इससे मुराद, ज़राअत है इससे मुराद, मुलाजमत है इससे बात। भाई इससे अपना जो पाई पैसा कमाते हैं, इनकम है, जो रोज़ी कमाना है, ठीक है, जो हलाल की दौलत है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। हलाल की जो दौलत है ना, इसको दुनिया दुनिया करके, इसको जो है ना, इसको बहुत सारे हम लोग जो है ना, इसको दुनिया दुनिया करते रहते हैं ज़बान की नोक से, अंदर से बड़ी महबूब होती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग गलती भी खा बैठते हैं कि ये दुनिया है जी, छोड़ो जी दुनिया को, छोड़ो, दीन की तरफ आओ। यानी दीन नाम रखा हुआ है मस्जिद में बैठने का और बाज़ार में जाने का नाम दुनिया है। अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला करो, उन्होंने कैसे बाज़ार कायम किए थे। अल्लाह के नबी की सीरत का मुज़ाहरा करो, उन्होंने कितने लोग तैयार किए थे जिन्होंने तिजारत की थी, और कितने लोग हैं कि उनकी तिजारत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। उनके कारोबारी ठियों पे जाके बैठ बैठ के उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। और उस वक़्त जो अपनी ताकत थी, दुनिया की बड़ी ताकतों के मुकाबले में रसूलुल्लाह ने अपने बाज़ार कायम किए थे। आज का दुश्मन चाहता है ना, हम सिर्फ नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, हाज करें, तिलावत करें, तबलीग करें और पढ़ें, पढ़ाएं, लेकिन तिजारत वाली बात हमने नहीं करनी है। आज जंग ही तिजारत की चल रही है। क्या वजह? पड़ोसी मुल्क ने पड़ोसियों से तेल ख़रीदा और उन बड़ी जिरगेदार चौधरियों ने पाबंदी लगा दी कि इनके ऊपर टैरिफ इतना कर दो और इतना कर दो और इतना कर दो। क्या वजह है? क्या मईशत की जंग नहीं चल रही है? आज अगर जिहाद है तो तिजारत का तिजारत के मैदान में है। आज जहाद तिजारत के मैदान में, लिहाजा तिजारत के जिहाद की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। और यही मौलवी उनको चुभता है जो सच बात बताता है कि इसको हटाओ भाई। हमें तो ऐसा मौलवी लगता है बिल्कुल जो
लोगों को कह के बस आओ ज़िक्र करो, तिलावत करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, बस अल्लाह अल्लाह करो, दुनिया के कामों को छोड़ो, ये सारी फजूल चीज़ें हैं, इनकी तरफ नहीं जाना है, और बस वो जाते जाते हमारी खुराक खा के वो बीमार हो, और फिर हमारी दवाइयाँ खा के वो मरने के करीब पहुँचे, और फिर जब वो कब्र में जाए ना तो उसका कफन भी हमारी फैक्ट्रियों से तैयार हो, फिर उसकी कब्र के ऊपर जो है ना वो बड़ी बड़ी चादरें भी हमारी फैक्ट्रियों की तैयार करके चढ़ाई जाएं। हज़रत बड़े अल्लाह ही वाले थे जी। अल्लाह वालों को पढ़ो तो सही, अल्लाह वाले थे कौन? अल्लाह वाले तो वो थे कि जो 5 किलो सोना एक एक मार्के के लिए वक्फ करते थे, और 200 ऊँट और 100 ऊँट और 1/3 लश्कर का खर्चा, आखिर इतना कुछ कमाया हुआ था तो तब देते थे ना, तब देते थे। लिहाजा खूब अल्लाह के फजल को कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, ये दीन है। हराम के करीब नहीं जाना, अल्लाह के फजल को खूब कमाओ। वाले तब तगु मिन फजली, ये कसब माश मुराद है, अल्लाह का फजल तलाश करो। मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्लाह मफ्ताहली अबवाब रहमतिक, या अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल, मेरा आपसे ताल्लुक बने। और जब हम मस्जिद से निकलें तो क्या होती है दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, यहाँ पर भी फजल से मुराद कसब माश है। या अल्लाह अब अपना फजल दे मुझे, कसब माश, रिज़्क़ हलाल मुराद होता है। या अल्लाह रिज़्क़ हलाल मुझे अता फरमा। अल्लाह अकबर। अब जब ये दुआ पढ़ो ना निकलते वक्त, तो दिल में ये नीयत भी आए कसब मुआश वाली, अल्लाह मदद फरमाता है। बंदे को अपनी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए दायरा कार के अंदर, और दीन और दुनिया को अलग ना रखे। मोमिन की तो सारी ज़िंदगी दीन है ना, उसकी मौत, उसकी शादी, उसका गम, उसकी खुशी, उसकी तिजारत, उसका सोना, उसका जागना, सब दीन होना चाहिए। भाई ये तफरीक क्यों आ गई है कि दीन की लिमिट्स ये हैं और दुनिया की लिमिट्स वो हैं? ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो और खूब मांगो। वाले तब तगु मिन फजलिही, अल्लाह ने दिन बनाया है ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि इस सुकून और फजल के बाद तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी को अल्लाह ने रिज़्क़ दिया हुआ है, किसी को अल्लाह ने सुकून दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा किए। वयौम युनादिहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़ुमून, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकारेंगे, वो कहाँ गए मेरे शुरका जिनको तुमने बना रखा था, किधर हैं? रुकू का रब्त जुड़ा जी माक़बल से, रुकू के आगाज़ में था यौम युनादिहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़ुमून 62 में। अब उसी को दोबारा बयान किया, वयौम युनादिहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़ुमून। मकसूदी ये बात थी कि क़यामत वाले दिन ये जितने भी झूठे माबूदान हैं इनकी आजिज़ी साबित हो जाएगी, कहाँ है वो? और फिर वनज़ाना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन, हर उम्मत से हम एक गवाह पैदा करेंगे, एक गवाह खड़ा करेंगे। वो उम्मत का नबी होगा, या वो उम्मत का मुजद्दिद होगा, या वो उम्मत का बड़ा रब्बानी आलम और लीडर होगा। फ़कुलना, हम कहेंगे हातू बुरहानकुम, लाओ ना तुम्हारी पास कोई दलील है। फ़ालिमु अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, उस दिन तो सब लोग जान लेंगे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने अपनी तरफ से गवाह भी कायम किया हुआ है, बाकी दलाइल भी मौजूद हैं, और उनके पास कोई दलील नहीं होगी, वो सब जान लेंगे, यकीन जान लेंगे। अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, हक़ सारा अल्लाह ही के लिए। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, गढ़ी हुई सारी बातें गुम हो जाएंगी, झूठे माबूदान भी गुम, झूठे ख्यालात भी गुम, झूठे नज़रियात भी गुम, तमाम फजूल बातें जो है ना उनका कोई पता खुरा नहीं मिलेगा, और तमाम सच्ची बातों की एक एक दलील वहाँ पे सामने नज़र आ जाएगी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।